तो भगवान डुबकी नहीं लगाते, जल समाधि नहीं लेते हैं, ना भगवान कभी मरते हैं। भगवान खाली रूप बदलते हैं। वो राम से विष्णु के अवतार हो गए, विष्णु चक्रहरि। देवलोक से विमान आया, भगवान उस पर बैठ गए। भरत और शत्रुघ्न ने कहा कि हे प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो, कहीं तथास्तु। तो भरत जी को समापित किए शंख में और शत्रुघ्न को समापित किए चक्र में, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न एक चक्र एक शंख थे। समापित करने के बाद प्रजा कहती है जो भगवान के साथ में आए अयोध्यावासी, ये प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो, कहीं तथास्तु। এখন আমরা গুপ্তার ঘাটে এসে পৌঁছেছি। এখানে শ্রীরাম সমাধি নিয়েছিলেন। এখানে একটা ছোট স্টোরি আছে। এখানে শ্রীরামের সঙ্গে যমরাজ দেখা করতে এসেছিলেন এবং তখন শ্রীরামকে বলেছিলেন যমরাজ যে আমি যখন আপনার সাথে কথা বলবো তখন যেন কেউ সেই কথা না শোনে বা না দেখে, তার মাঝে না ঢোকে। যে ঢুকবে তাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দেবেন, এরকম একটা বচন দিন আমাকে। তো শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন ঠিক আছে তাই। এবার লক্ষ্মণজিকে দরজার বাইরে দাঁড় করে রেখেছেন শ্রীরামচন্দ্র, বলেছেন কেউ আসলে কিন্তু দেখা করতে দেবে না, আমার সাথে ইন্টারাপ্ট করবে না। তো তারপরে কি হয়েছিল, দুর্বাসা মুনি সেই সময় এসেছিলেন রামজির সঙ্গে দেখা করতে। তো লক্ষ্মণজি তখন দুর্বাসা মুনিকে কিছুতেই দেখা করতে দেবেন না রামজির সঙ্গে, কি কেননা তিনি তার দাদাকে কথা দিয়েছেন যে কাউকে তিনি প্রবেশ করতে দেবেন না যতক্ষণ যমরাজের সঙ্গে কথা বলবেন উনি। এবারে দুর্বাসা মুনি তো প্রচণ্ড রাগী ছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন যে যদি তুমি আমাকে না ঢুকতে দাও এক্ষুনি, তাহলে আমি তোমাকে তো শেষ করবই আর পুরো অযোধ্যা ধ্বংস করে দেবো। তখন লক্ষ্মণজি ভাবলেন যে আমি যদি ভেতরে ঢুকি, রামজি যেখানে যমরাজের সঙ্গে কথা বলছেন, তাহলে শুধু আমি শেষ হব। আর আমি যদি না ঢুকি, আমি যদি দুর্বাসা মুনিকে আটকাই, তাহলে কিন্তু আমার সাথে সাথে পুরো অযোধ্যা শেষ হয়ে যাবে। তাহলে আমার নিজেকে শেষ করা উচিত, অযোধ্যাকে নয়। তখন লক্ষ্মণজি দরজা খুলে শ্রীরামের ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। তো ন্যাচারালি রাম তো অবাক হয়ে গিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন, কী করে রামের কথা লক্ষ্মণ অমান্য করলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ রামকে বললেন যে দাদা তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও। তো সবাই রামকে বোঝাচ্ছিলেন যে ছেড়ে দিন শ্রীরামজি, কারণ লক্ষ্মণ তো আপনার খুব প্রিয় এবং আপনার ছোট ভাই ও ঢুকে পড়েছে, ছেড়ে দিন, ওকে ত্যাগ করে দিন, তাহলেও তো ওর মৃত্যুদণ্ডেরই সমান হবে। কিন্তু লক্ষ্মণ রামকে প্রেশারাইজ করলেন। উনি বললেন যে শ্রীরামের বচন কখনো উল্লঙ্ঘন হবে এটা আমি চাই না। প্রাণ যায় পর বচন না যায়। তো লক্ষ্মণজি বলে যে তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও, নাহলে আমি শান্তি পাবো না, আমাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে তোমাকে। বাধ্য হয়ে রামজি লক্ষ্মণজিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেন। তখন লক্ষ্মণজি এই গুপ্তার ঘাটে প্রথম সমাধি নেন। তারপরে অবশ্য এখানে ভরত, শত্রুঘ্ন সবাই এখানে সমাধি নেন। শ্রীরামজিও এখানে সমাধি নেন এবং নিজের মানব জীবন সমাপ্তি করে নিজের ধামে ফিরে যান। এই হচ্ছে এখানকার ছোট্ট একটি স্টোরি। আজ আমরা এসেছি সেই তীর্থস্থানে। শ্রীরামের তিরোধানের এই স্থান, এই পবিত্রতা, এই নির্মলতা, এই সৌন্দর্য অনুভব করার জন্য। मैं यहाँ का पुजारी हूँ। अच्छा। तो लोग यात्री टूरिस्ट जो आते हैं उनको बताते हैं महात्म यहाँ का, अगर कहते हैं तो पूजा पाठ भी करा देते हैं। अच्छा। हाँ, एक मरतबा प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सरजू मैया की जय। सरजू मैया की जय। सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे, सबसे बड़ा महत्व तो ये लिखा है मोक्षदायिनी। हाँ, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी या
और ये राम लक्ष्मण जानकी का राज दरबार है जो अच्छा। सामने वो बड़ा मंदिर। ओके। ये मेन मंदिर है भगवान का, जो अच्छा। हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र है। अच्छा यही मंदिर विश्व का पहला मंदिर है जो अच्छा। भगवान के हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र है। अयोध्या में भगवान सब त्याग करके तब यहाँ पे आए थे, ना कुछ लाए थे भगवान, ना कुछ लेकर गए। अच्छा। ये ऐसा मंदिर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये दक्षिण है और ये उत्तर है। यहाँ पे ओके। दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बहती है, उत्तर वाहिनी है, अच्छा उल्टी दिशा बहती है 3-4 किलोमीटर में। अच्छा। और यही जा करके हमारे अयोध्या में पश्चिम से पूरब बहती है, वहाँ सीधा बहती है, यहाँ उल्टा दिशा बहती है। तो भगवान जो है सबसे पहले माता सीता जी अपने शरीर को त्यागी थी। कानपुर के रास्ते में वाल्मीकि आश्रम पड़ता है, एक गांव पड़ता है भिटुल, वहाँ पे माता जी धरती में समा गई थी। अब अयोध्या में राम घाट के बगल में लक्ष्मण घाट है, वहाँ लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागे थे सरजू जी में, तो शेषनाग के अवतार हो गए थे। बचे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। तो भगवान किस महीने में आए थे? सुवार के महीने में, जो हम लोग अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, तर्पण पितृपक्ष में भगवान आए थे यहाँ। जब आए तो पहले सरजू मैया का चरण स्पर्श किया, माथा लगाया उनको। और ये दक्षिण दिशा है, हमारे पितृ लोग रहते हैं, भगवान पितृ लोग में आए। जैसे सवेरे उठ के हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, वैसे भगवान ने दक्षिण दिशा अपने पितरों को जल दिया था। जल देने तर्पण किए थे, मतलब जल दिए। उसके बाद बालू का पिंड बना करके भगवान ने रेत का अपने माता पिता के नाम पिंडदान किया। क्यों किया? माता सीता जी गया में कर रही थी, भगवान साथ में थे, वो अकेले कर रही थी, इसलिए भगवान ने नहीं माना कि जिसके 4 पुत्र हो आप कैसे कर सकती हैं, इसलिए भगवान ने नहीं। तो यहाँ पर तर्पण किए, पिंडदान किए। करने के बाद सरजू जी का जल लेकर के गऊ का चरण धुले, परिक्रमा किए। जब इनकी पूंछ उठाकर मस्तक पे लगाए तो भगवान की ब्रह्म हत्या खत्म हो गई। क्योंकि रावण ब्राह्मण था ना, भगवान क्षत्रिय थे, लंका में मारे थे, तो उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। तो भगवान ने सोचा दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बह रही हैं और पितृलोक चल रहा है और गौ घाट है, तो अपने माता पिता को भी तार देंगे और गौ का पूजा करने के बाद अपना ब्रह्म हत्या उतार लेंगे। तो जब भगवान की ब्रह्म हत्या खत्म हो गई तो भगवान 4 कदम सरजू जी के अंदर जाते हैं इतने पानी में, तो सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य आपका संपन्न हुआ, रावण मर गया, लीला खत्म हो गया प्रभु, और 11,000 वर्ष आपका धरती पे पूर्ण हो गया है। अब आप वैकुंठ धाम पधारिए और जिस रूप में जाना चाहते हैं प्रभु, जिस रूप में धारण कर सकते हैं, चाहे वैष्णव रूप में या जिस रूप में आप जाओ। तो भगवान डुबकी नहीं लगाते, जल समाधि नहीं लेते हैं, ना भगवान कभी मरते हैं, भगवान खाली रूप बदलते हैं। वो राम से विष्णु के अवतार हो गए, विष्णु चक्रहरी। देवलोक से विमान आया, भगवान उसमें बैठ गए। भरत और शत्रुघ्न ने कहा कि हे प्रभु, हमें भी अपने साथ लेते चलो, कहीं तथास्तु। तो भरत जी को समापित किए शंख में और शत्रुघ्न को समापित किए चक्र में, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न एक चक्र एक शंख थे। समापित करने के बाद प्रजा कहती है जो भगवान के साथ में आए अयोध्यावासी, ये प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो, कहीं तथास्तु। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं विष्णु भगवान, ये ब्रह्मा जी ये सब देवता है, हमारे साथ अयोध्या में लीला करने आए थे, इनको भी आप वैकुंठ धाम पहुँचाइए, अपने अपने योनि में सब पहुँच जाएंगे, कहीं जैसे प्रभु आज्ञा आपकी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अयोध्यावासियों, राम राम करते जाओ और सरजू में प्रवेश करते जाओ। तो राम राम करते गए, सरजू में प्रवेश करते गए, सब देवता के रूप में आते गए, भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। हनुमान जी पीछे खड़े थे, दौड़ के आए, चरण पे गिर पड़े कि हे प्रभु, जहाँ आप वहीं हम, बिना आपके हम नहीं रह पाएंगे। तो कहे हे हनुमान, अगर आप हमारे साथ चले जाएंगे तो राम को जानने वाला संसार धरती पे कौन रह जाएगा और कलयुग में राम नाम का प्रचार कौन करेगा। इसलिए हनुमान जी को यहाँ रोक दिए, अजय अमर का वरदान दिए कि जाइए अयोध्या में सबसे ऊँची गद्दी तुम्हारी रहेगी और कलयुग में आप अजय अमर रहेंगे, सबकी रक्षा करना, और कोई देवी देवता नहीं रहेंगे। तो हनुमान जी को हमारे अयोध्या का राजा घोषित कर दिए वहाँ, और कलयुग का भार हनुमान जी को पल्ला दी। तो हनुमान जी गए, हनुमानगढ़ी अयोध्या में बैठ गए। हाँ, और भगवान यहाँ से साकेत धाम, विष्णु लोग वैकुंठ धाम को चले गए। हनुमानगढ़ी हमारे वहाँ के माननीय पुजारी जो है, हम लोग के जो है गुरु हैं राजू दास जी, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के मेन महंत हैं वहाँ पे हनुमानगढ़ी पे जो है, हाँ वहाँ के मेन महंत। तो इसीलिए भगवान आए थे राम के रूप में, गए हैं विष्णु के रूप, विष्णु चक्र है। इसके विषय में कहे हैं तुलसीदास कि कल्पकोट काशी बसे, कल्पकोट काशी बसे, मथुरा बसे हजार, और एक लिमिट सरजो बसे, तुले न तुलसीदास। ये है बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, ये जय श्री राम। और यहाँ पे 2 चीज़ है,
यहाँ पे अगर आने से पितरों का पूजा करने से अपने माता पिता ना हो, दादी दादा ना हो, आजी आजा ना हो, नानी नाना, दक्षिण दिशा जल गिराने से उनके आत्मा को शांति मिलती है कि हमारे कुल में कोई आया है, हमको भी जल दिया है, जहाँ पे भगवान ने स्वयं सबको उतारा है। और गौ का पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति बनती है और हमारे पितृलोक बैतरनी पार होते हैं। बैतरनी पार किया जाता है पूजा करने से, और पितृदोष से हमको कम होता है, पितृदोष खत्म होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पूजा करने से ये दो चीज़ का बहुत महत्व है। अच्छा, ठीक है, नमस्ते जी, जय श्री राम।